हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। आज हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे विच इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेट अस सपोज हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जो हमने एयर में रखी है। इस ग्लास स्लैब के अंदर ही एक सोर्स ऑफ लाइट है जिससे एक रे ऑफ लाइट ग्लास एयर इंटरफेस पे गिर रही है। Let us suppose the angle of incidence is I. Then this ray is going to bend away from the normal since it is going from a denser medium to a rarer medium. Second case में हमने angle of incidence बढ़ा दिया such that this angle is equal to a certain angle which is known as critical angle. We will discuss about this. Then we observe that this ray grazes the glass air interface. इसका मतलब angle of refraction इस केस में कितना है 90 डिग्री। It means critical angle वो angle of incidence है जिस केस में angle of refraction कितना होगा 90 डिग्री when the ray is going from a denser medium to a rarer medium. Now let me increase the angle of incidence even further. Then we see that this ray gets reflected back in the same medium. ये ray reflect हो जाती है same denser medium में। इस phenomena को मैं बोलती हूँ total internal reflection। और इस केस में जो angle of reflection होगा that will be equal to the angle of incidence. So it means when a ray of light traveling from a denser medium to a rarer medium is incident on an interface at an angle greater than the critical angle, it gets totally reflected back in the same medium. This phenomena is known as total internal reflection of light. इसका मतलब कि अगर एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है और वो जैसे ही इंटरफेस पे गिरती है एट अ सर्टेन एंगल विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो वो उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। If we want to observe the phenomena of total internal reflection, then we must satisfy two conditions. First one is light must go from an optically denser to an optically rarer medium. Light का optically denser से optically rarer medium की तरफ जाना जरूरी है. This phenomena cannot be observed when the light is going from a rarer to denser medium. It has to go from a denser to rarer medium. This is the first condition for total internal reflection. And the second condition is the angle of incidence is in the denser medium should be greater than a certain angle called critical angle. जो angle of incidence है denser medium में, जैसे हमने देखा था कि ग्लास स्लैब से एयर में जब जा रहा था तो वो angle of incidence जो था it should be greater than a certain angle called critical angle. And this critical angle is a constant for a given pair of media. अगर एयर ग्लास का पेयर दे रखा है इसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है क्रिटिकल एंगल की, इससे बड़ा होना चाहिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड। नाउ लेट्स डिफाइन एंड डिराइव क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट इज द angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि ये वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में, किसमें ग्लास में, जिसके लिए रेयरर मीडियम में दैट इज एयर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइन of angle of incidence that is IC upon sine of angle of refraction, और यहाँ पे angle of refraction कितना है 90 डिग्री। So sin 90 is equal to refractive index of air with respect to glass. Air with respect to glass क्यों? क्योंकि यहाँ पर glass से air में जा रही है, और I can write it as 1 upon refractive index of glass with respect to air और absolute refractive index of glass. Now sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? It's equal to 1. So it means I can write sin IC is equal to 1 upon
refractive index of glass with respect to air, or I can write IC is equal to sine inverse of 1 upon refractive index of glass with respect to air. This is how I can find the value of critical angle for glass air media. Now let's discuss about the various applications of total internal reflection. They include brilliance of diamond, mirage, optical fibers, totally reflecting prisms. We'll take them up one by one. डायमंड का स्पार्कल करना is a consequence of total internal reflection only. ऐसा इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का बहुत ज़्यादा होता है 2.42. Refractive index of diamond is very large, 2.42, so its critical angle is small. We know that sin IC is equal to 1 upon eta. Eta is the refractive index of diamond. अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ये क्वांटिटी स्मॉल होगी, जिसकी वजह से क्रिटिकल एंगल भी डायमंड का कम होता है. क्रिटिकल एंगल डायमंड का कम होने की वजह से जो भी लाइट इस एंगल से ज़्यादा एंगल पे डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर गिरती है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है. The faces of diamond are cut in such a manner that light entering from any face suffers multiple total internal reflections. अगर किसी भी फेस से लाइट गिर रही है वो अंदर जाके इतनी बार रिफ्लेक्ट होती जाएगी, and this reflection is possible only because of small critical angle and remain within the diamond. अब वो multiple reflection suffer कर रही है तो वो diamond के अंदर ही रहेगी, coming out only through few faces. Hence the diamond sparkles. इसलिए हमें लगता है कि डायमंड चमक रहा है क्योंकि उसके अंदर लाइट ट्रैप हो जाती है. The next phenomena related to total internal reflection is mirage. कभी कभार ऐसा होता है कि जब बहुत गर्मी होती है तो वहां पर हमें ऑब्जेक्ट्स की धरती में इमेज दिखने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि सामने ग्राउंड पे पानी है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. दिस इफेक्ट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड ऑन हॉट डेज इन हाईवेज. अगर हम हाईवेज पे हैं तो ऐसी इमेज हमने कभी ना कभी देखी होगी. हमें लगता है कि ग्राउंड पे पानी है, हाईवे पे पानी है, बट वो होता नहीं है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई. इस फिनोमिना को हम मिराज बोलते हैं, जिसे हिंदी में मृग तृष्णा भी बोला जाता है. मिराज कैन बी एक्सप्लेन लाइक दिस. In summers, the layer of air just near the ground is hotter than the upper layer. हमारे गर्मियों में ग्राउंड बहुत गर्म हो जाता है upon absorbing the sun rays. तो जस्ट उसके ऊपर जो एयर की लेयर होती है वो भी बहुत गर्म हो जाती है as compared to the upper layers of air. वो थोड़ी ठंडी होती हैं that contain the cooler air or denser air and the lower air contain the warm air. जिस वजह से ऊपर वाली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और नीचे वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लोअर लेयर इज लेसर देन दैट ऑफ अपर लेयर. When the light coming from the object undergoes continuous refractions, it gets totally internally reflected. जब ये एक पेड़ है सामने, पेड़ से जो लाइट आ रही है ये कंटिन्यूसली अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, सिंस इट इज गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम. और एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में, और हमें ऑब्जर्वर को लगता है कि ये नीचे से आ रही है. तो जो पेड़ के ऊपर जो कोकोनट लगा है उसको लगता है कि ये कोकोनट यहाँ पर है. इस तरीके से उसे एक प्रॉपर इन्वर्टेड इमेज दिखती है इस ट्री की. सो एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मिराज. जब हमें उस ट्री की प्रॉपर इन्वर्टेड इमेज दिख रही है तो हमें क्या लगेगा कि नीचे ग्राउंड पर क्या है, पानी है, बट एक्चुअल में पानी होता नहीं है. Now the third most important application of total internal reflection is optical fiber. आपने ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स मार्केट में देखे होंगे जिसमें कुछ फाइबर्स है और उनके टिप से एक लाइट निकल रही है. इस तरीके के फाइबर्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स.
They are also based on the phenomena of total internal reflection. तो ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या है? ऑप्टिकल फाइबर्स, an optical fiber is a fine strand of quality glass or quartz surrounded by a glass coating of slightly lower refractive index called cladding. एक पतला सा पाइप होता है, फाइन स्ट्रैंड होता है, जैसे एक बाल का एक स्ट्रैंड हो, उसके ऊपर एक और ग्लास की कोटिंग की जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है। अगर हमसे इसके यूजेस पूछा जाए तो ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सबसे पहले तो ऑप्टिकल सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। जैसे हमने सुना होगा कि सी के अंदर लाइंस बिछ रही हैं फॉर इंटरनेट, ताकि वहां तक, उस जगह तक, रिमोट एरियाज तक इंटरनेट पहुंचाया जा सके, तो वो भी ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू होता है। लाइट पाइप की तरह मेडिकल एग्जामिनेशन में स्टमक की एंडोस्कोपिक जिसे बोलते हैं, एंडोस्कोपी में स्टमक के अंदर लाइट पाइप डाला जाता है ताकि ऑर्गन्स को ऑब्जर्व किया जा सके, और उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर ही यूज होता है। डेकोरेटिव आइटम्स जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाई है, इसके अंदर भी लाइट पाइप्स यूज हो रही हैं। ऑप्टिकल फाइबर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो कोर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू उसके ऊपर जो कवरिंग होती है। इसके ऊपर की कवरिंग को हम बोलते हैं क्लैडिंग और इनर वायर को हम बोलते हैं कोर। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। वायर के एक एंड पे ट्रांसमीटर लगा होता है जिसकी वजह से जो लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर पे गिरती है इट फॉल्स एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रही है जिसकी वजह से इट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, and this process continues and it comes out at the receiver end, and this is how it actually looks like. Now let's discuss about the fourth application, that is totally reflecting prisms. जैसे आप इसमें देख सकते हैं एक लेजर लाइट आ रही है, एक आइसोसेलेस प्रिज्म पे गिर रही है and it is getting totally internally reflected. Let us suppose हमारे पास एक आइसोसेलेस प्रिज्म है जिसमें ये एंगल कितना है 45 डिग्री है और ये एंगल है 90 डिग्री। इस ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो है 42 डिग्री। लेट अस सपोज इसके लेफ्ट साइड पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है AB, देन B से जो लाइट रे आएगी इट विल fall at an angle of 45 degree. This angle will be 45 degree according to geometry, और critical angle है 42 degree. So this is greater than critical angle. So it will get totally internally reflected and will come out of the prism as it will fall normally on the other surface. Same will happen with the other ray as well. And we will get an image A dash B dash. तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री से रोटेटेड इमेज मिल रही है, इसका मतलब इट हैज डिवेटेड लाइट रे थ्रू 90 डिग्री। नाउ लेट्स टेक द सेकंड केस। यहाँ पर मेरा AB ऑब्जेक्ट है, जैसे ही ये प्रिज्म में एंटर करेगी इट विल गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड सिंस दिस एंगल इज 45 डिग्री और क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। दूसरे फेस से भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी एंड इट विल कम आउट ऑफ द प्रिज्म लाइक दिस। इसी तरीके से B से आने वाली रे भी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमारे पास इस तरीके की इमेज बनेगी A dash B dash. So here this prism has deviated the light ray through 180 degree to obtain an inverted image. एक inverted image बनाने के लिए इसने टोटल कितना डिविएट कर दिया लाइट को? 180 डिग्री से डिविएट कर दिया। Now let's take up the third case. यहाँ पर AB ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही हैं और विद इन द प्रिज्म दे गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एंड दे कम आउट ऑफ द थर्ड सरफेस ऑफ द प्रिज्म टू फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्टेड इमेज इज ऑब्टेन्ड, बट इन दिस केस लाइट का डिविएशन नहीं है, विदाउट डिविएशन ऑफ लाइट रेज। सेकेंड केस में हमने देखा था इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही थी, बट यहाँ पर लाइट रेज 180 डिग्री से डिविएट हो रही थी, यहाँ पर 180 डिग्री का डिविएशन नहीं है। एंड इन द फर्स्ट केस वी वर गेटिंग अ 90 डिग्री रोटेटेड इमेज। So these were the applications of total internal reflection. I hope this topic is clear to you. That's all for now. Have a good day.